یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایران کے شہر اصفہان کی دیواریں بھی شاعری کیا کرتی تھیں اور بازاروں میں عطر کی جگہ علم کی خوشبو مہکتی تھی۔ اصفہان جو اپنے نیلے گنبدوں اور خوبصورت باغوں کے لیے جانا جاتا تھا، اس وقت اسلامی دنیا میں خطاطی یعنی کیلیگرافی کا دل ہوا کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان خطاط رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ اللہ نے زید کی انگلیوں میں جادو بخشا تھا۔ جب وہ قلم کو سیاہی میں ڈبو کر کاغذ پر رکھتا تو حرف ایسے ناچتے تھے جیسے کوئی درویش وجد میں ہو۔ اس کی لکھی ہوئی قرآن کی آیتیں دیکھ کر لگتا تھا مانو الفاظ میں روح ڈال دی گئی ہو۔ زید اپنی کلا میں ماہر تھا، لیکن اس کے دل میں ایک بیماری بھی تھی، غرور کی بیماری۔ اسے لگتا تھا کہ پوری دنیا میں اس سے بڑا کوئی فنکار نہیں ہے۔ اصفہان میں ایک اور خطاط تھا، خالد۔ خالد کا کام بھی بہترین تھا، لیکن اس کی کلا میں زید جیسی روحانیت نہیں تھی۔ دونوں میں ہمیشہ ایک مقابلہ سا رہتا تھا۔ زید جب بھی کوئی مقابلہ جیتتا تو اس کا غرور اور بڑھ جاتا۔ شہر کے سب سے بڑے اور بزرگ خطاط تھے استاد یوسف۔ استاد یوسف کی عمر 100 سال کے قریب تھی اور انہوں نے اپنی پوری زندگی قلم اور کاغذ کے نام کر دی تھی۔ ان کا کام دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ سیاہی سے نہیں، نور سے لکھتے ہوں۔ زید سمیت شہر کے تمام خطاط ان کی عزت کرتے تھے، لیکن زید من ہی من یہ بھی سوچتا تھا کہ اب استاد بوڑھے ہو گئے ہیں اور آنے والا دور اسی کا ہے۔ پھر ایک دن استاد یوسف کا انتقال ہو گیا۔ پورا اصفہان غم میں ڈوب گیا۔ جب ان کی وصیت پڑھی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنا بیش قیمتی سامان، اپنی کتابیں، اپنے قلم سب غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیے تھے، لیکن اپنے سب سے قابل شاگرد زید کے لیے انہوں نے صرف ایک چیز چھوڑی تھی، ایک پرانا پیلا پڑ چکا کاغذ کا ٹکڑا۔ اس کاغذ پر نہ کوئی دولت کا ذکر تھا، نہ کوئی جائیداد کا۔ اس پر استاد نے اپنے ہاتھ سے صرف ایک پہیلی لکھی تھی۔ اس کا عنوان تھا سیاہی حق کی ترکیب، سچائی کی سیاہی بنانے کا نسخہ، اور نیچے لکھا تھا، اے زید، تم حرفوں کو کاغذ پر اتارنا تو سیکھ گئے، پر ان کی روح کو سمجھنا ابھی باقی ہے۔ جس دن تم سیاہی حق بنا لوگے، اس دن تمہاری کلا مکمل ہو جائے گی۔ اسے بنانے کے لیے تمہیں 3 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ پہلی، کسی سچے گنہگار کا وہ آنسو جو تنہائی میں صرف اپنے رب کے لیے بہا ہو۔ دوسری، اس مسافر کی جوتوں کی وہ گرد جو اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے میلوں چلا ہو۔ تیسری، اس چراغ کی وہ کالخ جو دولت کے لیے نہیں، علم کی روشنی پھیلانے کے لیے ساری رات جلا ہو۔ یہ پڑھ کر زید کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اسے لگا کہ استاد نے مرتے مرتے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ کیا بچکانہ پہیلی ہے؟ آنسو، گرد اور کالخ؟ میں کوئی جادوگر نہیں، ایک فنکار ہوں۔ اس نے غصے میں وہ کاغذ پھینک دیا۔ اس کے رقیب خالد نے اسے تانا مارا، لگتا ہے استاد کو تمہاری اصلیت پتہ چل گئی تھی۔ تم صرف لکیریں کھینچ سکتے ہو، حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات زید کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئی۔ کئی راتوں تک اسے نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار استاد یوسف کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا اور وہ سوچتا کہ کیا استاد واقعی میرا مذاق اڑا رہے تھے یا اس پہیلی میں کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ آخر کار اس کے غرور نے ہی اسے چنوتی دی۔ اس نے طے کیا کہ وہ اس پہیلی کو سلجھا کر رہے گا اور دنیا کو دکھا دے گا کہ زید کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور سیاہی حق کی تلاش میں ایک لمبے اور انجانے سفر پر نکل پڑا۔ زید کا خیال تھا کہ گنہگار کا آنسو ملنا سب سے آسان کام ہوگا۔ وہ شہر کی جیل میں گیا۔ وہاں اس نے ایسے قیدی دیکھے جو رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، لیکن ان کا ہر آنسو سزا کے ڈر سے تھا، سچی توبہ سے نہیں۔
वो शहर के उन कोनों में गया जहां शराबी और जुआरी रहते थे। वहां भी उसने लोगों को रोते देखा। कोई दौलत हारने पर रो रहा था, कोई अपनी बुरी किस्मत पर, लेकिन किसी के आंसू में वो सच्चाई नहीं थी जिसका जिक्र उस्ताद ने किया था। महीने गुजर गए। जैद थक कर एक दूर दराज के गांव में पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़े लकड़हारे के घर पनाह ली। वो बूढ़ा बहुत खामोश रहता था। दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और शाम को चुपचाप अपने अल्लाह की इबादत में लग जाता। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। जैद की नींद खुल गई। उसने देखा कि बूढ़ा लकड़हारा अपने कमरे में सजदे में पड़ा है और सिसक सिसक कर रो रहा है। जैद छिपकर उसकी दुआ सुनने लगा। बूढ़ा कह रहा था, ए मेरे मालिक, तू जानता है जवानी में मेरे हाथ खून से रंगे हैं। मैं एक डाकू था। मैंने न जाने कितने काफिले लूटे, कितने बेगुनाहों को सताया। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे जिस्म में ताकत नहीं बची, लेकिन मेरे गुनाहों का बोझ मेरी रूह को हर पल कुचलता रहता है। मैं लोगों के सामने तो शरीफ बना फिरता हूं, पर मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। ऐ अल्लाह, तू रहीम है, मुझ पे रहम फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा। उसकी आवाज हिचकियों में डूब गई और उसकी आंख से एक आंसू टूटकर जमीन पर गिरा। उस अंधेरे कमरे में, उस अकेले आंसू में जैद को कायनात की सारी सच्चाई नजर आ गई। वो समझ गया, सच्चा आंसू वो नहीं जो दुनिया को दिखाने के लिए बहाया जाए, बल्कि वो है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर निकले। उसने उस आंसू को उठाने की कोशिश नहीं की, उसने बस उस एहसास को अपनी रूह में उतार लिया। जैद का गुरूर पहली बार टूटा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो कितना छोटा और नासमझ था। अब जैद को दूसरी चीज की तलाश थी, उस मुसाफिर के जूतों की गर्द, जो अपने लिए नहीं औरों के लिए चला हो। उसका ख्याल मक्का जाने वाले हाजियों की तरफ गया। वो एक बड़े से काफिले के साथ हो लिया, लेकिन उसने देखा कि ज्यादातर अमीर हाजी ऊंटों और घोड़ों पर सफर कर रहे थे। उनका सामान गुलाम उठाए हुए थे। उनका सफर भी एक तरह की शान और शौकत का इजहार था। उसे वहां वो निस्वार्थ भाव महसूस नहीं हुआ। काफिला एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। एक दिन भयानक रेतीला तूफान आया और जैद अपने काफिले से बिछड़ गया। वो रेगिस्तान में अकेला रह गया। जब उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा तो उसे एक शख्स अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो एक बूढ़ा सक्का था, पानी पिलाने वाला। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसकी पीठ पर पानी का एक बड़ा सा मशकीजा लदा हुआ था। उसने जैद को पानी पिलाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। जैद ने पूछा, बाबा, आप इस तपते रेगिस्तान में अकेले कहां जा रहे हैं? बूढ़े सक्के ने जवाब दिया, यहां से 20 मील दूर कुछ गरीब बस्तियां हैं जहां पानी का कोई कुआं नहीं है। वहां सिर्फ बेवा औरतें और यतीम बच्चे रहते हैं। मैं 20 साल से रोज इस कुएं से पानी भरकर उन तक पहुंचाता हूं। जैद हैरान रह गया। इसके बदले में वे लोग आपको क्या देते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, वे लोग जो दुआएं देते हैं वही मेरी कमाई है। मेरा अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। जैद कई दिनों तक उस बूढ़े के साथ रहा। वो देखता कि वो बूढ़ा हर दिन 40 मील का सफर तय करता, तपती रेत पर नंगे पैर चलता ताकि कुछ प्यासे लोगों को पानी मिल सके। उसकी चाल में न कोई शिकायत थी, न कोई थकावट, बस एक सुकून था। एक शाम जब वो बूढ़ा अपनी बस्ती में दाखिल होने लगा तो उसने अपने जूतों को बाहर झाड़ा ताकि घर में रेत ना जाए। जैद आगे बढ़कर उस गर्द को अपनी हथेली पर ले लिया। यह सिर्फ मिट्टी नहीं थी, यह उस निस्वार्थ सेवा, उस मोहब्बत और उस इंसानियत की खुशबू थी जिसे जैद ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैद की आंखों में आंसू थे। गुरूर का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बाकी था वो भी इस गर्द के सामने खाक हो गया था। कई साल गुजर चुके थे। जैद का हुलिया बदल चुका था।
वो अब इस्फहान का वो बांका मगरूर नौजवान नहीं, बल्कि एक जहां दीदा खामोश मुसाफिर बन चुका था। अब उसे आखिरी चीज की तलाश थी, उस चिराग की कालिक जो इल्म के लिए जला हो, दौलत के लिए नहीं। इसकी तलाश उसे बगदाद के मशहूर मदरसे बैतुल हिकमत तक ले गई। वहां उसने बड़े बड़े आलिमों और फाजिलों को देखा। उनके कमरों में चिराग रात रात भर जलते थे। लेकिन जब जैद ने उनकी महफिलों में बैठकर देखा तो महसूस किया कि ज्यादातर लोग इल्म इसलिए हासिल कर रहे थे ताकि वो दूसरों को बहस में हरा सकें, ताकि वे सुल्तान के करीबी बन सकें, ताकि वे शोहरत हासिल कर सकें। उनके चिराग इल्म के लिए नहीं, उनके अना के लिए जल रहे थे। एक बार फिर जैद को मायूसी हुई। एक रात वो बगदाद की एक गरीब बस्ती से गुजर रहा था। उसने एक झोंपड़ी से आती हुई धीमी रोशनी देखी। जब वो करीब गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी नाबीना यानी अंधी औरत बैठी है और अपने हाथ से खुरदुरे कागज पर कुछ उभार बना रही है। उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का चिराग जल रहा था। जैद ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? जैद ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इतनी रात गए क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने उसे अंदर बुला लिया और बताया, मैं नाबीना हूं, मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बस्ती के जो बच्चे यतीम हैं वे कुरान सीखें। मैं उनके लिए हरफों को उभार कर एक ऐसा तरीका बना रही हूं जिससे वे छू कर पढ़ सकें। उसका छोटा सा चिराग टिमटिमा रहा था। तेल खत्म होने वाला था, लेकिन उसकी लगन में कोई कमी नहीं थी। उसे ना कोई शोहरत चाहिए थी, ना कोई दौलत। वो बस चाहती थी कि इल्म की रोशनी दूसरों तक पहुंचे। जैद सारी रात वहीं बैठा रहा। सुबह जब उस चिराग की लौ बुझ गई तो जैद ने उस बूढ़ी औरत की इजाजत से बड़ी अकीदत के साथ उस चिराग के मुंह पर जमी हुई कालिख को अपनी एक डिबिया में जमा कर लिया। उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। उस्ताद की पहेली सुलझ चुकी थी। लगभग 7 साल बाद जैद वापस इस्फहान लौटा। लोग उसे पहचान भी नहीं पाए। उसके बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरे पर सफर की कहानियां लिखी हुई थीं। इस बीच खालिद इस्फहान का सबसे बड़ा खत्तात बन चुका था और शाही दरबार से जुड़ गया था। जब खालिद ने जैद को फटे हाल देखा तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो मिल गई तुम्हें सच्चाई की स्याही ऐ फकीर, कहां है वो, दिखाओ तो जरा। जैद कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। कुछ ही दिनों में सुल्तान ने एक बहुत बड़े मुकाबले का ऐलान किया। शाही मस्जिद की सबसे बड़ी दीवार पर कुरान की सूरह रहमान लिखनी थी। खालिद ने अपने सबसे कीमती कलम और बेहतरीन स्याही का इंतजाम किया। दूसरी तरफ जैद ने ना तो वो आंसू इस्तेमाल किया, ना वो गर्द और ना ही वो कालिक। वो समझ चुका था उस्ताद यूसुफ ने उसे कोई नुस्खा नहीं बल्कि एक सफर पर भेजा था। स्याही हक कोई चीज नहीं थी जिसे बनाया जा सके। वो एक एहसास था, एक कैफियत थी जो रूह में उतरती है। वो आंसू, वो गर्द और वो कालिक उसके दिल और रूह को साफ करने का जरिया थे। जैद ने साधारण सी स्याही खुद तैयार की। जब लिखने का वक्त आया तो खालिद ने बड़ी शान से लिखना शुरू किया। उसके हर्फ मोतियों की तरह खूबसूरत थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताबों में होते हैं। फिर जैद ने कलम उठाया। उसने आंखें बंद की। उसे वो गुनहगार याद आया, उसे वो मुसाफिर याद आया, वो नाबीना औरत याद आई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जब उसने कागज पर लिखा अर्रहमान तो देखने वालों की सांसें रुक गईं। वो सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, उसमें अल्लाह की रहमत झलक रही थी। जब उसने लिखा फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो ऐसा लगा जैसे दीवार खुद लोगों से सवाल कर रही हो। उसकी लिखावट में एक नूर था, एक गहराई थी, एक जिंदगी थी। खालिद की कला उसके सामने एक बेजान जिस्म की तरह लग रही थी। मुकाबला खत्म होने से पहले ही नतीजा सबके सामने था। जैद जीत गया था, लेकिन आज उसकी जीत में गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी और शुक्र था।
उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और दिल ही दिल में अपने उस्ताद को सलाम किया। वो समझ गया था कि सबसे बड़ा फनकार वो नहीं जिसकी उंगलियों में जादू हो, बल्कि वो है जिसका दिल पाक हो, क्योंकि कला हाथ से नहीं, रूह से जन्म लेती है।